all. Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about reproduction in plants. Okay, let's start the chapter. So, student, first of all, they have asked us to label the different parts of a plant. So, let's do it. See, what is it? This is the flower part. Okay, so we'll write over here what's flower. Flower, flower. What is it? This is the green part of the plant which is known as leaves. 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 Okay. Then what is it? This is bud. Okay. Bud eventually becomes a flower afterwards. So this is the bud. Then next we have this part. This is fruit. So write over here Fruit. Let me correct it. This is fruit. Okay. Now, next we come to this part. This is the stem part of the plant. STEM, stem. And this is what? This is known as roots. The underground part of a plant is known as roots, which is under the soil basically. Okay. Done? Now, so let's start the chapter. See, we have learned that reproduction is a process by which living things multiply to produce more of their own kind. In most of the plants, new plants are produced through germination of seeds. However, some plants produce new plants from parts other than seeds. And in plants, reproduction takes place by the following methods. So, student, what they're saying, जैसे कि हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है कि रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि वो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को, अपनी स्पीशीज के न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. दैट लिविंग और दैट लाइफ प्रोसेस done by the living organism is known as reproduction. Okay, so in most of the plants, as we know, plants भी क्या है, living organism है. So most of the plants में जो new plants हैं वो किसके थ्रू, seeds के germination के थ्रू produce होते हैं. Okay, however, लेकिन कुछ ऐसे plants हैं जिनमें new plants उनके seeds के कंपैरिजन यानी कि सीड से अलग हटके भी बाकी जो पार्ट्स है उनके थ्रू भी कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है. लाइक दे रिप्रोड्यूस बाय व्हाट? सीड, स्पोर्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू. ओके, इनके थ्रू भी कुछ प्लांट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अदर देन सीड्स. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. सबसे पहले सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स लर्न इट. सो most of the plants bear flower. As we all know that the plants में क्या होता है, flowers होते हैं. And once the flower blooms, their petals fall after drying and the flowers turn into small fruits. And जैसे ही एक बार flower bloom करते हैं, so उनकी जो petals है वो क्या हो जाती हैं, they fall up, ठीक है. And after drying, okay, and the flowers turn into small fruits. यानी कि एक बार जब flowers bloom करते हैं तो उसके बाद जो जितनी भी petals है वो dry होने के बाद fall off हो जाती हैं. जो flowers हैं वो किसमें, छोटे छोटे fruits में turn होने लगते हैं. एंड फिर यही फ्रूट्स क्या करते हैं, साइज में ग्रो करते हैं. दे मे हैव वन और मेनी सीड इनसाइड देम. एंड उनके अंदर या तो वन या बहुत सारी सीड्स प्रेजेंट हो सकती हैं. अब यही सीड्स है जो कि न्यू प्लांट्स को क्या देती है, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सारी ही सीड्स क्या हो, न्यू प्लांट्स में ग्रो हो. ठीक है, some seeds are not mature enough to grow into a new plant. Some are destroyed by strong winds or rain, and some are eaten by the birds and insects, and some do not get favorable conditions to germinate. So, कुछ सीड्स तो ऐसी हैं जो कि इतना मेच्योर नहीं हो पाती है कि वो एक सीड में ग्रो कर सके या एक प्लांट में ग्रो करे. कुछ सीड्स को स्ट्रॉन्ग विंड्स या रेन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कुछ आपके बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स खा जाते हैं. एंड कुछ सीड्स को फेवरेबल कंडीशन ही नहीं मिल पाती है जनरेट होने के लिए. So only those seeds which get the right conditions grow into plants, and we will read about these conditions later in this chapter. So सिर्फ वही सीड्स जिनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वही सीड्स जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट में डेवलप होती हैं. अदरवाइज दे डू नॉट गेट जर्मिनेट. ओके, अब वो क्या कंडीशंस हैं जो एक सीड के ग्रोथ के लिए और उसके जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली लेटर ऑन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ सीड. अब सीड्स के क्या क्या पार्ट होते हैं. So although seeds में different size, shape and color, they have parts which are common. So वैसे तो seeds जो है, different seeds जो है, उनका size, shape, color सब कुछ different हो सकता है, लेकिन उनके जो parts होते हैं वो सभी seeds में common होते हैं. Okay, the outermost covering, सबसे outermost covering जिसको हम remove कर सकते हैं एक seed की, that is known as seed coat. फिर इसके बाद seed coat का main function क्या है, it is to protect the seed. ठीक है, you can see in this picture only, this is the seed and the outermost covering. Okay, सबसे बाहर वाली जो covering है जो seed को protect करती है, that is known as seed coat. अब seed coat जो है different color की होती है in different seeds.
एंड आफ्टर रिमूविंग द सीड कोट, जैसे आप सीड कोट को रिमूव करोगे आपको 2 फ्लेशी सीड लीव्स इनसाइड दिखेंगी, दैट इज नोन एज कॉटिलेडन्स. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो जैसे आपने सीड को रिमूव किया, सीड कोट को, अंदर आपको 2 क्या दिख रही है, फ्लेशी सीड लीव्स दिख रही है, विच आर नोन एज कॉटिलेडन्स. फूड फॉर द बेबी प्लांट. अब बेबी प्लांट या एम्ब्रियो के लिए जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिलेडन्स में स्टोर होता है. बेबी प्लांट किस में प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडन्स के बिटवीन, यानी कि बीच में प्रेजेंट होता है बेबी प्लांट. ओके, तो सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द बेबी प्लांट व्हिच इज बिटवीन द 2 cotyledons. Now some seeds like gram, peas and beans have 2 cotyledons. Okay, and such seeds are called dicot. अब कुछ ऐसे seeds हैं like gram, peas, bean, इनमें 2 cotyledons present होते हैं and therefore they are known as dicot. लेकिन कुछ ऐसी seeds like wheat, maize, rice, इनमें single cotyledon present होता है and ऐसे seeds को monocot कहा जाता है. Okay? Now, germination of seed. अब seed का germination कैसे होता है? Let's discuss it. So when a seed gets favorable conditions, it grows into a baby plant called seedling, and the process of development of a seed into a seedling is called seed germination. As I told you, जब एक seed को सारी favorable conditions मिलती है, वो seed आपकी grow करती है और एक baby plant में develop होती है. ओके, और बेबी प्लांट को क्या कहा जाता है, सीडलिंग कहा जाता है. सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक सीड डेवलप होकर सीडलिंग में बन जाती है, यानी कि एक बेबी प्लांट में डेवलप होती है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन. सो एयर इज नीडेड बाय दिस सीड फॉर ब्रीदिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सीड के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर रिक्वायर्ड है सीड के लिए, ब्रीदिंग के लिए. उसके अलावा मॉइस्चर भी चाहिए सीड को क्या करने के लिए, सो दैट वो सीड कोट जो है वो सॉफ्ट बने, उसके लिए मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है. बेबी प्लांट ब्रेक्स अ सॉफ्ट सीड कोट एंड कम्स आउट. अब मॉइस्चर के थ्रू वो सीड कोट सॉफ्ट हो जाती है एंड उसके बाद बेबी प्लांट उसी सॉफ्ट सीड कोट को ब्रेक करके क्या होता है, बाहर आता है. द वार्मथ हेल्प्स द सीड टू बिकम एक्टिव. फिर उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेरिक वार्मनेस है वो उस सीड को हेल्प करती है टू बिकम एक्टिव. एंड इसके साथ साथ सीड को कुछ सुटेबल एंड राइट टाइप ऑफ सॉइल की भी रिक्वायरमेंट है, अच्छी क्वालिटी के सॉइल भी रिक्वायर्ड है टू ग्रो फुलफिली. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. अब सीड जर्मिनेशन की क्या क्या स्टेजेस है. सो सीड व्हेन सोल्ड, जब हम सीड को सोक करते हैं वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है अपने होल के थ्रू. एंड ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर को एब्जॉर्ब करने पे सीड स्वेल्स एंड द सीड कोट बिकम सॉफ्ट. सीड जो है वो क्या हो जाती है, स्वेल फूल जाती है और सीड कोट कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. अ स्मॉल रूट, एक छोटी सी रूट है जो उस सीड ब्रेकिंग से सीड कोट को ब्रेक करके उस सीड से बाहर निकल कर आता है, एक छोटी सी रूट. एंड इस रूट को कहा जाता है रेडिकल. ठीक है, इट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी. रेडिकल हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ ग्रो करता है. लेटर उसके बाद एक स्मॉल शूट, छोटी सी शूट है जो सीड से एमर्ज होती है, विच इज कॉल्ड प्ल्यूमूल. एंड प्ल्यूमूल ग्रोज अपवर्ड. प्ल्यूमूल हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है. The seed with a small root and shoot is called the seedling. अब एक ऐसी सीड जिसमें छोटा सा रूट एंड छोटा सा शूट पार्ट होता है, that is called seedling. The seedling gets the food from the cotyledons of the seed. इस seedling को food कहाँ से मिलता है? I told you seed में जो cotyledons present होते हैं उनसे seedling को food derive होता है. As the baby plant grows, जैसे जैसे आपका baby plant grow होता है उसमें छोटी छोटी green leaves develop होना शुरू हो जाती है inside the plant, है ना. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज वी कैन सी ग्रीन लीव्स ऑन द शूट. एंड कुछ दिनों बाद आप उस शूट वाले पार्ट पे ग्रीन लीव्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. द ग्रीन लीव्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. द cotyledons dry up and fall down and the seedling now develops into a new plant. एंड ये जो ग्रीन लीव्स अब डेवलप हुई है ये किस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देती है. यानी कि व्हाट, एज आई टोल्ड यू फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है जो ग्रीन लीव्स से प्रेजेंट होता है. तो जब सीड में लीव्स ही डेवलप नहीं हुई थी सीडलिंग में, तब तक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता था. एंड उस स्टेज में जो खाना मिल रहा था एक सीड को डेवलप होने के लिए वो कॉटिलेडन्स के थ्रू मिलता था. लेकिन जब हमारे शूट वाले पार्ट में क्या सीड ग्रीन लीव्स डेवलप होना शुरू हो गई, अब वो लीव्स क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती हैं. दैट मीन्स दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, एंड उसके बाद जो कॉटिलेडन्स है क्योंकि अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो ड्राई अप हो जाते हैं एंड दे फॉल आउट. और अब सीडलिंग डेवलप हो जाती है इनटू अ न्यू प्लांट. Now next we come to seed dispersion. What is seed dispersion? The process of scattering of seed from the mother plant to different places is called seed dispersion. अब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सीड्स जो है मदर प्लांट से क्या स्कैटर हो जाती है, दूर जाके फैल जाती हैं to different places, that is called seed dispersion. Now question arises. अब एक क्वेश्चन आता है कि why do seed needs to be dispersed? अब ये सीड्स को डिस्पर्स करना क्यों जरूरी है.
So dispersal of seed is essential because if all the seeds fall very close to the parent plant, they would not get enough air, water, light, space, and nutrients to grow, and they may not grow into healthy plants. Some may not even germinate, and therefore seeds must be dispersed. For the dispersal, a plant needs some dispersal agents. So what they saying कि सीड्स का डिस्पर्जन होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सारी सीड्स जो है पेरेंट प्लांट के क्लोज ही जाके फॉल होंगी, सो वो उन सभी को क्या इनफ एयर, वाटर, लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे सो दैट दे कैन ग्रो एंड डेवलप फुलफिली। ओके, वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनमें कंपटीशन हो जाएगा बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो इसीलिए क्या इनको क्या करना पड़ता है, दूर दूर पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर स्कैटर करना ज़रूरी है सो दैट इनको किसी दूसरे सीड के साथ अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कॉम्पीट ना करना पड़े। ओके, एंड और उसके बाद अगर ये सारी ही सीड्स एक ही जगह फॉल हो जाती है तो इनको कंपटीशन के साथ साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सीड्स है जो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं हो पाती हैं, कुछ जर्मिनेट ही नहीं हो पाती हैं। ओके, इसीलिए सीड डिस्पर्जन होना एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। एंड सीड के डिस्पर्जल के लिए प्लांट्स को कुछ डिस्पर्जल एजेंट्स भी चाहिए होते हैं। सो नेचर हैज डिवाइड सम वेज इन विच सीड्स विल बी डिस्पर्स। तो नेचर ने हमें कुछ क्या वेज प्रोवाइड करा जिसके थ्रू सीड्स को डिस्पर्स किया जा सकता है। सीड्स को आप विंड, वाटर, एनिमल्स एंड फ्रूट के एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स कर सकते हैं। विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो कि इस डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, दे ऑल आर नोन एज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। ओके, नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय विंड्स। अब कैसे सीड्स का डिस्पर्जल विंड के थ्रू होता है? एज आई टोल्ड यू, सीड्स जो कि विंड के थ्रू डिस्पर्स होगी वो सीड्स हमेशा लाइट एंड स्मॉल यानी कि बहुत छोटी होंगी साइज में। उनके पास क्या होंगे, सीड्स के पास हेयर या विंग्स होंगे सो दैट उनको इजीली विंड के थ्रू कैरी कन्वे किया जा सके। जैसे कि कॉटन, मदार, हिप्टेस, डैंडेलियन, इनकी सीड्स जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड। Now next we come to dispersal of seeds by water. वाटर के थ्रू कौन सी सीड्स का कैसे डिस्पर्जल होता है? सो वाटर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्जल फॉर द प्लांट विच ग्रो नियर रिवर, सीज, ओशन और पॉन्ड्स। ठीक है, उन सीड्स के डिस्पर्जल के लिए वाटर एज एन एजेंट फंक्शन करता है। जो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, नियर रिवर, सी, ओशन, किसी भी एक्वेटिक बॉडी के अराउंड जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उनके डिस्पर्जल के लिए वाटर एज एन डिस्पर्जल एजेंट एक्ट रहता है। ठीक है, जैसे कि लोटस फ्रूट में एक स्पॉन्जी पार्ट होता है जो उसको वाटर पे फ्लोट करने पे हेल्प करता है। एंड वही कोकोनट जो है, कोकोनट आपका अंदर से हॉलो होता है, उसमें थिक हेयरी कोट होती है बाहर की तरफ से, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर पे फ्लोट कर सकता है। एंड कोकोनट जब क्या ट्री से फॉल करता है इनटू द वाटर, इट फ्लोट्स, वो फ्लोट करता है एंड किसके थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है टू पार ऑफ प्लेसेस एंड दिस इज हाउ द सीड गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड का डिस्पर्जल होता है? सो ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, दस हेल्पिंग इन दिस डिस्पर्जल। अब ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स भी क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। हमने इन फ्रूट को खाया एंड हम इनके सीड्स को क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं कहीं भी। एंड इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सीड को डिस्पर्स कर रहे हैं, राइट। समटाइम्स, अब कभी कभी स्क्विरल्स होती है, ओके, दैट इज गिलहरी। स्क्विरल्स क्या करती है, वो भी नट्स को कहाँ ले जाती हैं, हाइड अवे प्लेसेस, कहीं ऐसी जगह ले जाती हैं जहाँ वो उन्हें छुपा के रखती हैं और उन नट्स को क्या कर देती हैं, नीचे डीप इनटू द सॉइल बरी कर देती हैं। अब उसके बाद उन्होंने इतनी डिफरेंट फेसेस पर नट्स को बरी किया होता है कि वो भूल जाती है उन्होंने लास्ट कहाँ किया था। इसकी वजह से वो वहीं रहता है वो नट जो है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये नट्स जो है न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। कुछ सीड्स लाइक ज़ैंथियम, टाइगर टेल, नेल, इन पे क्या हुक्स एंड स्पाइंस होते हैं जो कि एनिमल्स की हेयरी स्किन पे स्टिक हो जाते हैं एंड दे आर कैरिड अवे। ठीक, देन सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द बर्ड्स आल्सो। कुछ सीड्स को बर्ड्स भी डिस्पर्स करती हैं। वो क्या करती है, सीड्स को स्वेलो कर लेती हैं एंड ये इनकी ड्रॉपिंग्स के थ्रू क्या आ जाती है, सीड्स बाहर आ जाती है बिकॉज दे डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। ओके, समटाइम्स, अब कभी कभी व्हेन फ्रूट्स आर ईटन, जब फ्रूट्स को खाया जाता है, कुछ ऐसी सीड्स है जो बर्ड्स के बीक पे, ओके, जो उनके चोंच होते हैं उस पर स्टिक हो जाती हैं एंड जब वो अपनी बीक्स को रब करते हैं ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ये सीड्स आपके फॉल डाउन होती हैं एंड देन दे ग्रो देयर। सो इस तरीके से जो सीड्स आपके एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होती हैं, जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे सीड्स का डिस्पर्जल होता है? सो सम प्लांट्स हैव पॉड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पॉड्स होते हैं, कैसी, दिस इज पी का क्या है, ये एक पॉड है जिसके अंदर पी ही सीड्स है, राइट। सो दे बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड ऑन राइपनिंग। अब वो जो प्लांट्स जिन पे पॉड्स होते हैं, ये पॉड्स क्या होते हैं, राइप होने पे अच्छे से बर्स्ट हो जाते हैं और बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ बर्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सीड्स क्या होती है, दे आर स्कैटर्ड अवे टू द फार ऑफ प्लेसेस।
सो द एक्सप्लोजन पोस्ट स्कैटर्स द सीड इन ऑल डायरेक्शन। अब जिस तरीके से वो एक्सप्लोड होता है, मेच्योर जो पॉड है वो बर्स्ट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो उसके अंदर वो जो फोर्स है वो सीड को क्या कर देता है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पी, लेडी फिंगर, टैमरिंड, ये सभी आपके इसी टाइप ऑफ प्लांट के एग्जाम्पल्स है विच आर बीइंग whose seeds are being dispersed by the explosion method. Next we come to reproduction by vegetative propagation. अब vegetative propagation के थ्रू reproduction कैसे होता है, let's discuss it. So beside seeds, अब seeds के साथ साथ new plants also grow from different parts of a plant. As I told you कि seeds के थ्रू तो करती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए या अपने न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो करने के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो प्लांट के किसी दूसरे पार्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो प्लांट्स अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से भी ग्रो करते हैं, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड इस मेथड को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। अब रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स डिस्कस इट। सो कुछ रूट्स हैं लाइक कैरेट, डहलिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं अपने रूट्स के थ्रू। जैसे कि कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने रूट्स के अंदर फूड को स्टोर करते हैं, एंड जब इन रूट्स को आप सॉइल में प्लांट करोगे दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। यू कैन सी दिस इज रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। ओके, द नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अब स्टेम के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अनियन, पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, एंड इनके पास क्या होते हैं, दे हैव बर्ड्स, इन पे बर्ड्स होते हैं जिनको आप आईज कहते हो, जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। Now, any part of a potato having a bird can grow into a new plant on getting suitable condition. अब पोटैटो को कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें बर्ड प्रेजेंट हो, उसको अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप उसको सॉइल के अंदर डीप बरे करोगे तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे ऑन गेटिंग सुटेबल कंडीशन। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स है लाइक रोज एंड जास्मीन, ये कैसे ग्रो किए जाते हैं, इनको ग्रो किया जाता है इनकी एक मेच्योर स्टेम के पीस को, यानी कि एक मेच्योर स्टेम के इनके पार्ट को प्लांट कर दिया जाता है जिसमें बर्ड प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ही ये मेच्योर स्टेम जो है प्लांट की, उसके पीस को आप प्लांट करोगे इन द सॉइल एंड उसको रेगुलर बेसिस पे वाटर प्रोवाइड करोगे, इट विल डेवलप रूट्स एंड बर्ड्स। इसमें से रूट्स एंड बर्ड्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगी, एंड इस तरीके से स्टेम विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक स्टेम जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो करेगा। नाउ द पीसेस ऑफ अ स्टेम आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। अब जो आपने वो स्टेम के पीसेस कट किए हैं उसको दूसरी जगह आप प्लेस कर रहे हो, दोस पीसेस आर नोन एज स्टेम कटिंग। जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट, एक स्ट्रॉबेरी प्लांट में एक लॉन्ग स्टेम, बहुत लंबी सी स्टेम होती है जो ग्राउंड के अलोंग ग्रो करती है, जिसको आप रनर कहते हो। न्यू प्लांट्स भी इसी रनर के थ्रू ग्रो करते हैं, एंड जो रनर की एंड टिप होती है उसमें बड्स प्रोड्यूस होते हैं, बड्स ही आगे डेवलप होते हैं इनटू द न्यू प्लांट्स। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सो सम लीव्स हैव बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। अब कुछ लीव्स है जिनके मार्जिन पे, यानी कि जिनके एंड पॉइंट्स पे क्या होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड यही बर्ड्स ग्रो करते हैं इनटू द न्यू प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, दे रिप्रोड्यूस इन दिस मैनर ओनली। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। एज आई टोल्ड यू, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस, बट देयर आर सम सच प्लांट्स आल्सो व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर राउंड, स्मॉल एंड लाइट। राउंड, छोटे छोटे एंड लाइट होते हैं, एंड दे कैन बी डिस्पर्स इजीली इन डिफरेंट डायरेक्शंस गिविंग राइज टू न्यू प्लांट। एंड स्पोर्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स कर सकते हो, सो दैट दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। आपको स्पोर्स देखने को मिलता है इन फंगाई लाइक मशरूम्स एंड मोल्ड। ठीक है, फर्न्स में भी हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको आप सोरी कहते हो, एंड इन सोरी के अंदर ही स्पोर्स कैरी किए जाते हैं, एंड सोरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन दी लीव्स। ओके, चलो, now next topic which we are having is agriculture. So we have seen that a variety of plants are useful to us in many ways. Plant give us food, fiber for clothes, spices, wood, etc. And animals to give us a lot of useful products like milk, meat and fur. जैसे कि हमने देखा है variety of plants are there and ये सभी हमारे लिए useful है in different ways. Plants हमको काफी सारे useful products provide करते हैं like food, okay, fiber for clothes, spices, wood, etc. उसके साथ साथ animals भी आपको बहुत सारे useful products provide करते हैं like milk, meat and fur. सो इन सभी चीज़ों को सफिशिएंट क्वांटिटीज में क्या करने के लिए, अवेलेबल करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं। एंड जब हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल इन अ प्लांट मैनर फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि जब प्लांट्स को एक बहुत बड़े स्केल पर एक प्लांट मैनर में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है फॉर फूड एंड अदर पर्पस, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है,
Now next topic which we are having crops. So plants of the same kind. अब एक ही तरीके के plants को एक बहुत बड़े scale पे grow किया जाता है एक particular place पे during a particular time and those plants are called crops. ठीक है? Growing crops in the field by farmer is for cultivation. अब जब farmers के through field में crops को grow किया जाता है उसको हम cultivation कहते हैं. कुछ crops हैं like rice, maize and बाजरा जो कि summers में grow किए जाते हैं. They are called kharif crops. एंड व्हीट एंड बार्ले ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको विंटर्स में ग्रो किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स यानी कि बेसिकली जो समर में ग्रो किए जाते हैं दे आर खरीफ क्रॉप्स एंड जो विंटर में ग्रो किए जाते हैं दे आर राबी क्रॉप्स. नेक्स्ट इज सूटेबल सीजन. अ पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन अ सीजन बट द सेम मे नॉट ग्रो वेल इन अनदर सीजन. अब एक पर्टिकुलर क्रॉप हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्रॉप हो जो कि एक सीजन बहुत अच्छे से ग्रो करे लेकिन वही सेम क्रॉप अगर आप किसी दूसरे सीजन में ग्रो करोगे तो हो सकता है वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए. सो क्यों? क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इरिगेशन एंड राइट टेम्परेचर ये सब एसेंशियल फैक्टर्स हैं एक अच्छे क्रॉप के लिए. खारिफ क्रॉप्स इन इंडिया में जो खारिफ क्रॉप्स है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है जबकि अगर राबी क्रॉप्स की बात करें दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. However, showers in winters do wonders for rabi crops. लेकिन अगर मान लो कि विंटर्स में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो वो एक अच्छा ही क्या फ्रूटफुल होता है फॉर द राबी क्रॉप्स ऑल्सो. The next topic which we are having is soil. So soil is an important factor for the growth of plant. As we all know, plants की growth के लिए soil एक बहुत important factor है. ठीक है, different plants जो है well grow करते हैं different types of soil. And for a good crop, एक अच्छे crop के लिए soil को हमें well suited बनाना पड़ता है for the growth of the crop. So different soils have different capacities of holding water and air. अब different soils के पास different capacity है कि वो water and air को hold करे. So यहाँ पे कुछ crops आपको given है and soil भी यहाँ पे आपको given है जिन soil में वो particular crops grow करते हैं well. Okay, number one, wheat and maize. Wheat and maize को alluvial soil चाहिए होती है which is rich in humus and nutrients. The next we have rice. Rice grows in well in loamy and clay soil. Okay, rice जो है बहुत अच्छे से grow करता है loamy and clay soil में जिसमें अच्छा खासा water hold किया जाता है. जूट भी इसी टाइप की soil में grow करता है. Then बाजरा and ज्वार ये आपके sandy soil में grow करते हैं. Tea plants grow well in hilly region. Tea plant आपके hilly regions में ज़्यादा अच्छे से grow करते हैं. कोकोनट ग्रोज वेल इन कोस्टल रीजन. कोकोनट कोस्टल रीजन पर ग्रो करते हैं एंड कॉटन एंड ग्राउंडनट आपके ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यू हैव स्टेप्स टू बी फॉलोड टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप. अब एक हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए फार्मर को कुछ स्टेजेस के थ्रू क्या करना पड़ता है. दे हैव टू गो थ्रू सम स्टेजेस एंड देयर आर सम स्टेजेस व्हिच ऑफ अ ग्रोइंग अ क्रॉप. नंबर वन, प्लोइंग द फील्ड. सबसे पहले एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें अपने फील्ड को क्या करना पड़ता है, प्लो करना पड़ता है. ओके, फिर उसके बाद सोइंग द सीड्स को सो किया जाता है. फिर उसमें क्या एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर. फिर सॉइल में आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे. देन इरिगेशन यानी कि वाटर प्रोवाइड किया जाएगा. क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाएगा. देन हार्वेस्टिंग एंड फाइनली स्टोरेज. Okay, so first of all we have plowing the field. So the process of losing and turning of soil is called plowing. So एक ऐसा process जहाँ पे आप soil को lose करते हो, turn up करते हो, that process is called plowing. And इसमें basically soil को prepare किया जाता है for the sowing of और for the growth of crops. Plowing helps in many ways. Plowing हमें different ways में help करता है. Number one, plowing turns over the soil and brings the fresh nutrients to the upper layer. Plowing क्या करता है, soil को turn over करता है and जो fresh nutrients है उनको नीचे से upper layer में लेकर आता है. Plowing के through we are helped to uproot unwanted plants. Unwanted plants जो crops के साथ grow कर जाता है usually they are called weeds. तो plowing के through आप क्या कर सकते हो, weeds को uproot कर सकते हो which are growing in the field. नेक्स्ट, प्लोइंग क्या करता है, सॉइल को एरेट करता है यानी कि इसके साथ साथ आप सॉइल क्या कर सकती है, मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है. प्लोइंग अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल दस होल्डिंग द प्लांट फर्मली. प्लोइंग के थ्रू रूट जो है इजीली और ज्यादा डीपर पेनिट्रेट कर सकती है इनसाइड द सॉइल एंड इस तरीके से वो प्लांट को फर्मली अच्छे से होल्ड करके रखती है. नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग द सीड्स. अब जब हमने अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर लिया फॉर द प्रोडक्शन, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड. यानी कि सोइंग मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आप हेल्दी सीड्स को क्या करते हो, प्लांट करते हो इनटू द सॉइल. देन एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब जब हमने सीड्स को सो कर दिया इसके बाद हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर्स को मिक्स करना पड़ता है इन द सॉइल सो दैट उसको और ज्यादा फर्टाइल बनाया जा सके एंड रिच बनाया जा सके इन द न्यूट्रिएंट्स. इसके थ्रू जब आप क्या करते हो, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हो सॉइल को, उससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर. फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में. मैन्योर को बनाया जाता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम वेरियस केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं. फॉर एग्जांपल यूरिया, नाइट्रेट, फोस्फेट
एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में मेक द सॉइल आइदर टू एसिडिक और टू अल्कलीन। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं सो उससे आपकी सॉइल जो है या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, बहुत ज्यादा अल्कलीन हो जाती है, विच इज नॉट good for the plant and for our health also, as eventually we are only the ones who are going to consume those crops, okay, as a form of food. Now next is irrigation. We know plants need water for their growth. अब next step क्या है, जब आपने मिनर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड कर लिया सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इरिगेशन का। जैसे कि हमें पता है प्लांट को ग्रोथ के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं एट द राइट टाइम with adequate amount of water and it is called irrigation. Okay. Now the next step is crop protection. अब crops को protect भी करना पड़ता है from the grazing animals like cow and goat. उसके साथ साथ pests से भी हमें protect करना है like grasshopper and locust, and various diseases से भी plants को protect करना is necessary. Now fencing can be done to protect the crops from grazing animals. अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने फील्ड के अराउंड फेंसिंग करवा सकते हो सो दैट ग्रेजिंग एनिमल्स हमारे फील्ड के अंदर एंटर ना करे। ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करने के तो वी कैन डू फेंसिंग। ओके, देन डिफरेंट इंसेक्टिसाइड, उसके साथ कुछ केमिकल्स मार्केट में है दैट इज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। इनको यूज किया जाता है क्रॉप्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ स्केयर क्रोज होते हैं जिनको आप क्या फील्ड में इरेक्ट करते हो सो दैट हम सीड्स को सेव कर सके एंड क्रॉप्स को सेव कर सके फ्रॉम द बर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। अब उसके बाद जब आपके क्रॉप्स पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, सो देन द कटिंग डाउन ऑफ राइपन क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसके बाद राइपन क्रॉप्स को कट करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग को आइदर मैनुअली यानी कि या तो हम बाय हैंड्स करते हैं या फिर मशीन्स के थ्रू किया जाता है। ओके, चलो दिस इज द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज। नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। ग्रेन्स जो अब आपको मिले क्रॉप्स के थ्रू उनको मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इनको सेफ रखना पड़ता है फ्रॉम रैट्स, मोल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, एंड इसीलिए दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील कंटेनर्स, अ गुड क्रॉप एज टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। एंड इसीलिए इन ग्रेन्स को एयर टाइट सी कंटेनर्स में रखा जाता है। ओके, एंड एक जो अच्छा क्रॉप है अगर आप अच्छे से उनको सेव करोगे, स्टोर करोगे, तो वो क्या होगा, अच्छा आपका क्रॉप प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा जो कि आपकी नेशन के इकोनॉमी में भी फ्रूटफुल होता है। ओके, चलो, सो द चैप्टर is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.